Hello, my dear students. Good morning to everyone. I hope everyone is fit and fine at your home and you are doing your study in well manner. Today's lecture will be focused on the power system security, in which I will explain the contingency analysis and the different state of the power system. Okay. Let us see what is the power system security. As you know, security is something related to structure. Something should not be damaged by any particular situation, any particular change. As per the definition, power system security may be looked upon as the probability of the system's operating points remaining within acceptable range, given the probability of the changes in the system's contingencies and its environment. What is the meaning of these lines? This means power system की जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है, कैसे देखी जाती है? As the probability of the system's operating points remaining within acceptable range. जो systems के जो operating points हैं वो that must be remain within the acceptable range. Each and every operating points, for example, voltage, there is some operating ranges of the voltage. Similarly, in case of frequency, there is some range of the frequency that will be acceptable. Out of that range, power system will not accept the violation of that range. Then, what is the meaning of security? Power system security? The probability of the system's operating point remaining within acceptable ranges, given the probability of the changes in the system, is also known as the contingency. What is contingency? Change. कंटीजेंसी का मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है आकस्मिक, जो आकस्मिक चेंज होता है उसको बोलते हैं कंटीजेंसी. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द चेंजेस इन द सिस्टम है कंटीजेंसी है, और उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें उस सिचुएशन में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है पावर सिस्टम के वो एक्सेप्टेबल रेंज में होना चाहिए, रेंज के बाहर एक्सीड नहीं करना चाहिए. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. D. Liaquo first pointed out in 1967 that a power system may be identified to be operating in number of states. What is the states of the power system? That is broadly classified in three. That is, first one is preventive state, emergency state, restorative state. मतलब जो पावर सिस्टम है या तो प्रिवेंटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या तो इमरजेंसी स्टेट में या रिस्टोरेटिव स्टेट में. एक है आपका नॉर्मल स्टेट. नॉर्मल स्टेट जिसका मतलब है सिंपली आपका कि सारे जो आपकी जो कंस्ट्रेंट है लाइक वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड करंट, ये आपके क्या होंगे, वायलेशन लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे और क्रॉस नहीं करेंगे. तो नॉर्मल स्टेट. ठीक है. लेट्स सी ऑल द स्टेट वन बाय वन. प्रिवेंटिव स्टेट. प्रिवेंटिव स्टेट इज एक्चुअली द नॉर्मल स्टेट. ये एक नॉर्मल स्टेट होता है. द टर्म प्रिवेंटिव वाज यूज्ड टू स्ट्रेस द सिक्योरिटी एस्पेक्ट ऑफ द नॉर्मल ऑपरेशन. ये जो है, जो वर्ड है प्रिवेंटिव, ये जोड़ देता है सिक्योरिटी को. नॉर्मल ऑपरेशन में के दौरान ये जो सिक्योरिटी वर्ड है वो आपका सिस्टम मस्ट रिमेन सिक्योर. दिस इज स्ट्रेस्ड बाय दिस वर्ड बाय प्रिवेंटिव स्टेट. Normal operating condition usually means that all the operators are running within their prescribed limit and all the systems variable are within acceptable limit.
नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान आपके सभी जो ऑपरेटर्स हैं वो रन करेंगे प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में, जो सभी जो कंस्ट्रेंट की जो पर्टिकुलर लिमिट है उस दौरान जो है आपके ये सारे जो कंस्ट्रेंट है विद इन लिमिट रहेंगे और विद इन एक्सेप्टेबल रेंज में ऑपरेट होंगे. द सिस्टम शुड आल्सो कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मली इन इवन द केस ऑफ क्रेडिबल कंटीजेंसी. क्रेडिबल कंटीजेंसी के केस में आपका सिस्टम जो है आपका नॉर्मली ऑपरेट होना चाहिए. द ऑपरेटर शुड फोरसी मतलब फ्यूचर में आपका जो है ना प्रिडिक्शन और द इन फ्यूचर जो गड़बड़ी होने वाली है उसको अनुमान लगाना, गेस करना, ये फोरसी होता है. ऑपरेटर शुड फोरसी, वो भविष्य देख सके. सच इज द कंटीजेंसी डिस्टर्बेंस जो होगा उसको एंड टेक प्रिवेंटिव कंट्रोल, कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल उसे रोकने के लिए जो है कुछ एक्शन ले सके. And so that the system integrity and the quality of the power supply is maintained. तो पावर सिस्टम के जो है सप्लाई और इंटीग्रिटी means all the components should be operate in synchronized manner. तो ये मेंटेन रखने के लिए जो आपका जो कंट्रोल एक्शन जो होता है या प्रिवेंटिव कंट्रोल एक्शन दिया जाता है इन प्रिवेंटिव स्टेट. Now the emergency state, the power system enters an emergency state when some of the components operating limits are violated. ठीक है. इन केस जब आपका कुछ जो ऑपरेटिंग जो है ना सम ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग लिमिट, जो ऑपरेटिंग लिमिट है कुछ कंपोनेंट्स के वो अगर वायलेट होता है, एक्सीड करता है, उस केस में आपका इमरजेंसी स्टेट आता है, बनता है पावर सिस्टम में. सम ऑफ द स्टेट्स वांडर आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज, है ना. कुछ स्टेट जो है एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर टहलते हैं या लाई कर रहे हैं. व्हेन द सिस्टम फ्रीक्वेंसी स्टार्ट टू डिक्रीज, और उस केस में जो है आपके जो है सिस्टम की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज या रिड्यूस होना चालू हो जाती है, गिरना चालू हो जाता है. द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इन द इमरजेंसी स्टेट इज टू रिलीव द सिस्टम स्ट्रेस बाय अप्रोप्रिएट एक्शन. ठीक है. इसको कंट्रोल करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है इमरजेंसी स्टेट में, टू रिलीव द सिस्टम स्ट्रेस. जो सिस्टम का जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, दबाव है, जिसकी वजह से आपका जो लिमिट वायलेट हुआ है, एक्सीड हुआ है, उसमें जो है आपके अप्रोप्रिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है या ऑब्जेक्टिव जो होता है इसका अप्रोप्रिएट एक्शन का होता है. इकोनॉमिक कंसिडरेशन बिकम्स सेकेंडरी स्टेट. जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक मतलब जैसे पावर सिस्टम का जो है आपका मेन पर्पज होता है सप्लाई को जो है इंडस्ट्रीज को या आपके जो डोमेस्टिक यूजर है उसको सप्लाई करना. तो उससे क्या होता है उस केस में इन रिटर्न जो है आप अर्न करते हैं पावर सिस्टम जो कंपनी जो होती है. ठीक है. कुछ इकोनॉमी, कुछ फंड या कुछ मनी गेन करते हैं. लेकिन इमरजेंसी केस में आपके ये इकोनॉमिक जो कंसिडरेशन है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है. सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी होता है. नॉर्मल कंडीशन में आपके इकोनॉमिक कंसिडरेशन, all the devices should be operate in within range. ठीक है. an economic range. ठीक है. तो in case of emergency, economic consideration becomes secondary, not primary. Okay. Restorative state. This is the third one state. Restorative state is the condition when some part or whole of the system has lost power. जब आपके जो ऑपरेटिंग लिमिट्स हैं वो अगर जो उसको एक्सीड करने की वजह से या उस लिमिट को पार करने की वजह से अगर पावर सिस्टम के कुछ पार्ट्स या होल पार्ट्स में अगर पावर लॉस, जो पावर सप्लाई होता है लॉस्ट हो जाता है, मतलब नहीं रहता है, खो देता है, ऐसे केस को हम बोलते हैं रिस्टोरेटिव. मतलब जब सिस्टम फेल हो जाता है, दूसरे शब्दों में जब सिस्टम फेल हो जाता है, कोई फॉल्ट हुआ, सिस्टम फेल हो गया, तो अब वो उसमें पावर लॉस या सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी. अब क्या होगा, वो नॉर्मली ऑफ स्टेट में आ जाएगा. तो
अब उसको फिर से ऑपरेट करने के लिए रिस्टोर करना पड़ेगा सिस्टम को, है ना। तो ऐसे जो है स्टेट को बोलते हैं रिस्टोरेटिव स्टेट। The control objective in this state is to restore the system to a normal state again by taking appropriate action. नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए एक appropriate एक्शन लेना होता है। आपका आपको मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैं ब्लैक स्टार्ट करके पढ़ाया था। पावर सिस्टम जब आपका शटडाउन हो जाता है तो उसको जब विदाउट लोड पावर सिस्टम या जो पावर प्लांट को जो फिर से रिस्टार्ट या रिस्टोर करते हैं विदाउट कनेक्शन ऑफ द लोड और द लोड नेटवर्क, दिस इज दैट वाज कॉल्ड एज what was that? I will remember it. That was cold start. Sorry, black start. तो आपका ये आपका वो स्टेट है जिसमें आपका किसी पावर सिस्टम किसी पार्ट में या पूरे पार्ट में अगर पावर या सप्लाई लॉस्ट हो गई है, नहीं रह गई है, खत्म हो गई है, उस केस को क्या बोलते हैं रिस्टोरेटिव स्टेट। इसको जो है एप्रोप्रिएट एक्शन से जो है आपको फिर से रिस्टोर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव in this state is to steer the system to a normal state again by taking appropriate action. appropriate action द्वारा जो है सिस्टम को रिस्टोर किया जाता है या फिर से रनिंग कंडीशन में लाया जाता है। ठीक है, these are the state transition diagram या state flow diagram. This is the power system and this is the preventive control, reduction in the zero margin. In this state power system under preventive control, there will be alert. E and I, E is the voltage, I is the current. And after this alert state or preventive state, it will come emergency state. In case of emergency, some emergency control action will be taken. This arrow shown, ये जो एरो है आपका क्या दिखाता है, इमरजेंसी कंट्रोल। ठीक है, इस इमरजेंसी से जो आपका एक एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम से जो है आपका रिटर्न हुआ इमरजेंसी में। ठीक है, ये तो यहाँ से आपका जो है ये है रिडक्शन है रिजर्व मार्जिन, लोड पिकअप। लोड पिकअप मतलब जो आपका जो कंटीजेंसी होता है, जो लोड में चेंज होता है, उसकी वजह से जो पिकअप या एक्सेलरेशन होगा पावर सिस्टम या उसके जो अल्टरनेटर हैं। ठीक है, तो रिस्टोरेटिव स्टेट होगा ये आपको क्या करेगा, दो काम करेगा, या तो जो है पिकअप करके नॉर्मल कंडीशन में जाएगा या जो है अलर्ट भेजेगा। ठीक है, फिर जो है आपका ये जो चौथे एक्सट्रीम कंडीशन है तो उसमें रिसिंक्रोनाइज होने के चांसेस रहेगा। रिसिंक्रोनाइज अगर ये आपका एक्सट्रीम कंडीशन में जो है आपका इमरजेंसी सिग्नल भी या इमरजेंसी कंट्रोल भी जो है आपका स्टेट में दे सकता है रिटर्न होकर के, फिर इमरजेंसी कंट्रोल वापस अलर्ट मोड में या प्रिवेंटिव कंटेंट लाएगा, और अलर्ट स्टेट से जो है नॉर्मल कंट्रोल में अगर प्रिवेंटिव एक्शन सक्सेसफुल हुआ तो नॉर्मल स्टेट में आ सकता है। ठीक है, तो ई जो होता है यहाँ पे इक्वलिटी कंस्टेंट है, आई क्या है, इनइक्वलिटी कंस्टेंट है। ठीक है, और ये जो माइनस साइन है निगेशन वायलेशन है। तो यहाँ पे जो है इमरजेंसी जब वायलेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, मतलब आपका जो क्राइटेरिया है इनइक्वलिटी वाला वायलेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिस्टोरेटिव कंडीशन में क्या होगा, जो इक्वलिटी कांस्टेंट है वो वायलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ई और आई है, मतलब इनइक्वलिटी कांस्टेंट और इनइक्वलिटी कांस्टेंट, तो अलर्ट मोड है, ये प्रिवेंटिव स्टेट होगा। ठीक है, जब ये इसमें से इक्वलिटी कांस्टेंट अगर वायलेट हुआ तो वो आपका रिस्टोरेटिव स्टेट में आ जाएगा, और इमरजेंसी स्टेट कब आएगा, जब आपका इनइक्वलिटी कांस्टेंट वायलेट होगा। ठीक है, अब ये इक्वलिटी कंस्ट्रेंट और इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है। जैसे आपका इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट को जो है अगर हम नाम लें तो
जस्ट सेकेंड। जैसे आपका मान लो कोई फ्रीक्वेंसी है, मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपका एक अपर लिमिट होगा फ्रीक्वेंसी का, नॉर्मल ऑपरेटिंग F2 हो गया, एक लोअर लिमिट होगा, सपोज करो F लोअर लिमिट FL। तो ये आपका जो फ्रीक्वेंसी है इनइक्वालिटी का मतलब कि ये उस अपर और लोअर रेंज के बीच में रहेगा, उसके इक्वल नहीं होगा। और जो इक्वलिटी का मतलब जो वोल्टेज है या ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो जस्ट उसको इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल नहीं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसी इनइक्वालिटी केस में आपका जो कांस्टेंट या जो पैरामीटर है, इनइक्वालिटी कांस्टेंट या पैरामीटर, वो आपका इनइक्वल जब होंगे, है ना, मतलब उससे उस रेंज के अंदर रहना है, ना कि इक्वल या उसके बराबर रहना। और इक्वलिटी केस में आपको उस रेंज उस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर ही होना चाहिए। इस तरह से जो है आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ये आपका इम्पोर्टेंट जो है एक्सप्लेन करने के लिए, कंटीजेंसी सॉरी जो स्टेट एनालिसिस है, स्टेट पावर सिस्टम स्टेट, उसके एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल और लॉजिकल डायग्राम है, इसको आप ध्यान रखें, ठीक है। तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय 3 सेट्स ऑफ generic equation, 1 differential and 2 algebraic. Okay. Of the 2 set of algebraic equation, one comprises of the equality constraint and which is the balance between the generation and the load demand. Yeah. You can understand it from these lines. What is the algebraic equation comprised of? Equality constant क्या है आपका E? वो है balance between the generation and load demand. मतलब जो जनरेशन है आपका जस्ट इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू लोड डिमांड, ठीक है। ये कांस्टेंट आपका इक्वलिटी हो गया। दूसरा, अदर सेट कंसिस्ट ऑफ द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स which ensure that the various components in the system and the states remain within safe or acceptable limits. मतलब जो लिमिट्स होगा, क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी है, मान लो कि अपर फ्रीक्वेंसी जो है आपका 51.5 हर्ट्ज हो गया, 50 हर्ट्ज इज द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 47.8 इज द लोअर फ्रीक्वेंसी। तो जो आपका ये जो अपर और लोअर लिमिट है, ये क्या है, इस जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, वो इसके बीच में होना चाहिए, नॉट इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू द लोअर एंड अपर फ्रीक्वेंसी। मतलब हमेशा इनइक्वल, इसलिए क्या बोला, इक्वल नहीं बल्कि इनइक्वल हो गया, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी कांस्टेंट, ठीक है। द वेरियस कंपोनेंट इन द सिस्टम एंड द स्टेट्स लाइक वोल्टेज एंड करंट्स रिमेन विद इन सेफ एंड एक्सेप्टेबल लिमिट्स। ओके, नाउ ऑल दिस थिंग्स आर द टू यू कैन these paragraph are explanation of that diagram. If the emergency control action also fail, the system may enter extreme state, right? In this diagram, if emergency action control fail, then it will enter into the extreme state, in which extreme state both equality and inequality constraint will be violated. दोनों इक्वलिटी और इनइक्वलिटी जो कांस्टेंट होता है, दोनों वायलेट होगा। Do you understand?
मेजर कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट, जो सिक्योरिटी असेसमेंट करने का जो मेन कंपोनेंट है वो है सिस्टम मॉनिटरिंग, सिस्टम को मॉनिटर करना। दूसरा कंटीजेंसी एनालिसिस, और तीसरा प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन। The last two one, contingency analysis and preventive corrective actions, are the important or in our syllabus. Let's see. System monitoring means simple, we monitor the power system. Okay, normal situation. There are, you have already read about the SCADA. These systems are used to monitor the power system. Okay. Contingency analysis. This is important topic in this unit. What is contingency? Once the current operating state is known, the next task is the contingency analysis. The result of contingency analysis allows the system to be operated defensively. Major components of the contingency analysis are contingency definition, contingency selection, contingency evaluation. What is the meaning of these lines? Once the current operating state is known, एक बार अगर जो आपका जो सिस्टम, जो पावर सिस्टम के जो ऑपरेटिंग स्टेट है, एक बार मालूम कर लिया गया, जानकारी कर ली गई या कैलकुलेट कर लिया गया, तो नेक्स्ट टास्क क्या होता है? उसको कंटीजेंसी एनालिसिस करना। ठीक है, जो आकस्मिकता है, जो आपकी जो चेंजेस है, उसको एनालिसिस करना। और जो रिजल्ट ऑफ द कंटीजेंसी एनालिसिस है, अलाउ द सिस्टम टू बी ऑपरेटेड डिफेंसिव। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए क्या डिफेंस करना है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है जो एक्शन लिया जाता है वो कंटीजेंसी रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला काम क्या है कंटीजेंसी एनालिसिस का? ऑपरेटिंग स्टेट को फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना, उसके बाद उसको जो है कंटीजेंसी एनालिसिस करना, और कंटीजेंसी एनालिसिस करके जो है जो डिफेंस है सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिमेन शुड बी इन कंटिन्यूएशन और इन वर्किंग, देयर शुड बी सम एक्शन विल बी नीडेड। इन दैट केस देयर आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंटीजेंसी एनालिसिस आर फर्स्ट कंटीजेंसी डेफिनेशन, पहले कंटीजेंसी को डिफाइन करना, दूसरा उस कंटीजेंसी को, उस पर्टिकुलर स्टेट्स को सिलेक्ट करना, फिर इवेलुएट करना। ठीक है, लेट्स सी इन डिटेल। कंटीजेंसी डेफिनेशन इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ प्रोबेबल कंटीजेंसी, जो पॉसिबल कंटीजेंसी होती है, जो इमरजेंसी होती है या जो चेंजेस होते हैं, उसका लिस्ट प्रिपेयर करना आपका आता है कंटीजेंसी डेफिनेशन। दूसरा, कंटीजेंसी सिलेक्शन इज द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग द सेट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कंटीजेंसीज इन प्रीफर्ड, ठीक है, they need to be evaluated in terms of the potential risk to the system। जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या करता है? सिलेक्ट सेट ऑफ मोस्ट प्रोबेबल कंटीजेंसी, जो आपका जो मोस्ट पॉसिबल कंटीजेंसी है, मोस्ट प्रोबेबल जो घटित होने वाली कंटीजेंसी है, उसको जो है उसके सेट को सिलेक्ट करता है एंड इवेलुएट करता है द टर्म ऑफ द पोटेंशियल रिस्क टू द सिस्टम। जो आपका जो मोस्ट डेंजरस जो सिस्टम के लिए है, जो रिस्क है, रिस्की है, उसको क्या करता है? इवेलुएट करता है। पहले तो पॉसिबल कंटीजेंसीज को वो लिस्टिंग करता है, फिर जो है वो सिलेक्ट करता है सबसे जो मोस्ट रिस्की है। Usually, the first bar of solution technique such as the DC power flow are the used to quickly evaluate the risk associated with each contingency। ये जो आपका फर्स्ट जो DC power flow टेक्निक है, ये आपका काम करता है इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, पहले द सिलेक्ट कंटीजेंसी रैंक, जो कंटीजेंसी है उसको रैंकिंग की जाती है, और उसके बेसिस पे जो है वो इन ऑर्डर टू देयर सिक्योरिटी, उनका जो सिक्योरिटी जो रैंक आता है, टिल नो वायलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लिमिट्स इज ऑब्जर्व। वो किस पे बेस किया है? वायलेशन, कौन जो है आपका वायलेशन जो है करने वाला है ऑपरेटिंग लिमिट्स को, उसके आधार पर रैंक दिया जाता है। जैसे आपका जो कंटीजेंसी स्टेट जो है आपका बहुत जल्द वायलेट करने वाला है, उसको रैंक 1 दिया जाता है, और उसको उसके एनालिसिस करके प्रिवेंटिव एक्शन दिया जाता है। ठीक है, नाउ द प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस, उस कंटीजेंसी, उस चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम को रिमेन इन कंटिन्यूएशन रखने के लिए आपको कुछ एक्शन लेते हैं, जैसे प्रिवेंटिव है या करेक्टिव एक्शन है।
एग्जांपल दिए, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शंस आर नीडेड टू मेंटेन सिक्योर ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम के सिक्योर ऑपरेशन के लिए कुछ प्रिवेंटिव एक्शन या करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ठीक है, एंड आर टू ब्रिंग इट द सिक्योर ऑपरेटिंग स्टेट, या सिक्योर ऑपरेशन, और जो ऑपरेटिंग स्टेट है उसमें उसके रेंज में लाने के लिए जो आप जो एक्शन लेते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, उसको क्या बोलते हैं, उस एक्शन को प्रिवेंटिव या करेक्टिव एक्शन। द करेक्टिव एक्शन सच एज, एग्जांपल क्या है, स्विचिंग और वीआर, volt ampere reactive power capacity, or you can say fact devices है, physical AC transmission system, या जो वोल्टेज जो कंपनसेशन होता है उसी को बोलते हैं आपको वीआर कंपनसेटिंग डिवाइसेस। जैसे वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है तो आपको जो रिएक्टिव पावर फीड किया जाएगा, तो मतलब कैपेसिटर बैंक को स्विच किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर वोल्टेज राइज कर रहा है, उसके बीच में वोल्टेज लिमिट अपर लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में आपका जो इंडक्टिव लोड है या इंडक्टर स्विच किया जाता है पावर सिस्टम के अंदर, स्विच इन, जिसकी वजह से क्या होता है, वो रिएक्टिव पावर को ऑब्जर्व करेगा, जिसकी वजह से अगेन जो वोल्टेज प्रोफाइल हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा है चेंजिंग ट्रांसफार्मर टाइप्स। ट्रांसफार्मर के टाइप्स को जो है वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए ट्रांसफार्मर को अप या डाउन जो टाइप चेंज कम या अधिक कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं। और फेज शिफ्टर है, फेज लिमिट अगर जो आपका क्रॉस कर रहा है तो उसमें जो है आपके ट्रांसफार्मर को फेज शिफ्टर को चेंज करके जो मेंटेन करते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये ऑटोमेटिक नेचर में होती हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, ठीक है। ये जो प्रिवेंटिव या करेक्टिव एक्शन होते हैं ऑटोमेटिक मतलब खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन से जनरेशन और जनरेशन रिशेड्यूलिंग इन्वॉल्व द लॉन्गर टाइम स्केल। जो आपको जो जनरेशन को जो रिशेड्यूल करते हैं ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बाकी जो वीआर कंपनसेशन वाला है, फेज शिफ्टर वाला एक्टिविटीज है, ये सब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी, पहले आपका जो होता है जो ओल्ड सिस्टम था या क्लासिकल सिस्टम था, उसमें जो है आपका जो डिसीजन मेकिंग होता था वो ऑफलाइन नेचर का था। लेकिन आज की डेट में जो जैसे स्काडा वगैरह है, ये सारी चीजें जो है आपका ऑनलाइन पॉसिबल कर दिया है। ऑनलाइन असेसमेंट और सिस्टम स्टेट के लिए ये आपका जो है फ्लो चार्ट है। मेजरमेंट कैसे होता है, मेजरमेंट किया डेटा, मतलब आपका जो सेंसर है डेटा को मेजर किया, वोल्टेज लाइक वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी, उसको फिल्टर किया, ठीक है। अब फिल्टर जो है स्टेट, वो डिफरेंट स्टेट का एस्टिमेट करेगा। स्टेट करने के बाद क्या होगा, वो प्रिडिक्ट करेगा, ऑब्जर्व क्या करेगा, स्टेट एस्टिमेशन, या ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेबिलिटी एनालिसिस करेगा, बैड डेटा प्रोसेस करेगा और लिमिट चेक करेगा, ठीक है। लिमिट चेक करने के बाद आपको जो है इमरजेंसी स्टेट, रिस्टोरेटिव स्टेट और नॉर्मल स्टेट, ये तीनों स्टेट का जो लिमिट में चेक करके बताएगा कि पावर सिस्टम पर्टिकुलर किस स्टेट में है, नॉर्मल है, इमरजेंसी में है कि रिस्टोरेटिव में। अगर नॉर्मल है तो कंटीजेंसी सिलेक्शन, नॉर्मल है तो कंटीजेंसी सिलेक्शन करेगा और उसके बाद कंटीजेंसी का इवोल्यूशन करेगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर डाटा सेट को जो है डाटा सेट से कंटीजेंसी को इवैल्यूएट करेगा, फिर आपको इससे ऑनलाइन लोड फ्लो ब्लॉक को देगा, ठीक है। कंटीजेंसी इवैल्यूएशन के बाद जो है वो डिस्क्राइब करेगा या डिपिक्ट करेगा या डिसाइड करेगा कि सिक्योर है कि सिस्टम इनसिक्योर है, ठीक है। यहाँ से फिल्टरिंग डाटा को नेटवर्क टोपोलॉजी को जाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी जो है उसके बाद सीधे जो है डाटा ऑनलाइन लोड फ्लो डाटा ब्लॉक को देता है। यहाँ से फिर स्टेट एस्टिमेशन जो है आपका बस लोड फोरकास्ट, जो आपके जो ट्रांसमिशन लाइन या बसेज हैं उसको जो है लोड फोरकास्ट करता है। और यहाँ से स्टेट एस्टिमेशन जो है एक्सटर्नल नेटवर्किंग मॉडल जो पहले से आपका प्री डिफाइंड मॉडल है उसको देता है, और फिर वो आपका आउटपुट देता है ऑनलाइन लोड फ्लो ब्लॉक, ठीक है। ये ऑनलाइन लोड फ्लो ही आपका करंट स्टेट वो डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे वोल्टेज है, करंट है, पावर है, ये जो है विदिन लिमिट है कि नहीं है, वो डाटा इवैल्यूएट करने के बाद एक जो कंटीजेंसी इवैल्यूएशन ब्लॉक है
उसको डाटा देता है और उसको डिसाइड करता है कि आपका जो पावर सिस्टम है वो किस स्टेट में, सिक्योर स्टेट में है, इनसिक्योर स्टेट में। ठीक है, these are the DC power flow analysis. This is you have already studied about the AC power flow. Linear sensitivity factor, ये जो फैक्टर आपके डिसाइड करते हैं कंटीजेंसी स्टेट को। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन आपको जो है ना पावर सिस्टम की स्टेट को डिसाइड करने के लिए, ये आपका एक तो ये है लिनियर सेंसिटिव फैक्टर, एक जनरेशन सेंसिटिव फैक्टर। ये जो आपका जो ये फैक्टर जो है ये एलाइज डिपेंड होता है डेल एफ बाय डेल पी आई, जहाँ पे है चेंज इन आउटपुट ऑफ इट जनरेटर। ठीक है, इन मेगावाट एंड डेल्टा पे इज द चेंज इन द जनरेशन एट द RTH। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इस तरह से इसका भी फार्मूला याद रखना है जनरेशन से फैक्टर का। ओके, लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये जो है आपका DLK इक्वल टू डेल FI बाय FK ओल्ड। ये क्या होता है, लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। ये क्या होता है, चेक करता है क्योंकि चेक द लाइन ओवरलोडिंग एज रिजल्ट ऑफ आउटेज ऑफ ट्रांसमिशन। जब ट्रांसमिशन लाइन कोई फॉल्ट की वजह से आउट हो जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ओवरलोडिंग होता है रिमेनिंग सिस्टम पे, वो आपका इसी लाइन आउटेज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से डिसाइड किया जाता है। फार्मूला क्या है, DLK इक्वल टू डेल FL अपॉन FK ओल्ड, जहाँ पे FL इज द चेंज इन द मेगावाट फ्लो इन लाइन, FK ओल्ड इज द फ्लो इन लाइन के बिफोर इट्स आउटेज। आउटेज से पहले जो आपका जो फ्लो है पावर का, वो आपका FK ओल्ड है। ठीक है, और ये आपका एल्गोरिथम क्या करने के लिए, कंटीजेंसी एनालिसिस के लिए। तो ठीक है, एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऑब्टेन क्या करता है, प्राप्त करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट एस्टिमेशन। जो स्टेट एस्टिमेशन है वहां से सिस्टम का इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, उसके बाद प्रिपेयर लिस्ट प्रिपेयर करता है कंटीजेंसी के, C इक्वल टू 1, जहाँ पर C क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्टेड कंटीजेंसी। सिलेक्टेड कंटीजेंसी को जो है C इक्वल टू 1 मतलब आपका एक ही कंटीजेंसी सिलेक्ट है। यहाँ से आपका ये डेटा जो है आपका ये पढ़ा, जब L इक्वल टू 1 नंबर ऑफ लाइंस, कितने लाइंस का जो है, कितने ट्रांसमिशन लाइन को लिया गया है, उसके हिसाब से अब नेक्स्ट स्टेप काम करता है, ये कंपेयर द न्यू लाइंस फ्लो FL नेम फॉर द जनरेटर और लाइन ना, कंपेयर करता है ना, ओल्ड से न्यू को कंपेयर करता है जनरेटर के लिए और लाइन आउटेज के लिए। अब उस कंपेयर करने के बाद जो है वो इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स FL मिनिमम FL मैक्स रेंज है, उसको न्यू वाले को कंपेयर करता है उसके रेंज में है कि नहीं। अगर है तब जो है L इक्वल टू L, जो आपका जो नंबर ऑफ लाइंस है ना, आपका यहाँ से जो है आपका L इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, L इक्वल टू L तक चला। अगर यस है, ठीक है, नो है तो डिस्प्ले वार्निंग, अगर लिमिट को क्रॉस कर दिया तो वार्निंग डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नहीं है तो L इक्वल टू L, ये काम आपका रिपीट होता रहेगा कब तक, जबकि L इक्वल टू 1 लाइन 1 से लेकर के नंबर ऑफ टोटल लाइंस जितने हैं, फिर आपका ये फिर अगेन रिपीट होता रहेगा C इक्वल टू C, टोटल नंबर ऑफ कंटीजेंसीज जितनी है आपके टोटल कंडीशन, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट ये प्रोसेस आएगा, उसके बाद कैंपल। ये आपकी एल्गोरिथम है कंटीजेंसी एनालिसिस है, ये भी आपको याद रखना है, ये आप एग्जाम में बनाना है अगर आता है तो। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कंटीजेंसी एनालिसिस ऑफ द पावर सिस्टम एंड डिफरेंट स्टेट ऑफ द पावर सिस्टम। ओके, आई होप each and everything is clear to everyone, and if any doubt you may discuss with me anytime.